कैसे हैं आप सब लोग? I'm Dr. Khadija Sattar, consultant of St. Gynae working in ward number 16, Nishtar Hospital, Multan. Today our topic of discussion is coronavirus infection in pregnancy. आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा नोटोरियस हुआ है, so everybody would be knowing something about it. Would you like to share? Anybody? What is coronavirus? COVID-19. COVID-19. Anyone else? Pandemic. Pandemic. Contagious. Contagious. Lethal. Fatal. Lethal. Fatal. No treatment. No treatment. Pneumonia. No vaccination. No vaccination. Severe pneumonia. Pneumonia. Fatal pneumonia. So these are some characteristics of COVID-19 which you people have shared. That it is a pandemic. It has spread all over the world. It is contagious. Can spread from one person to another person very easily. It is lethal and fatal. It may lead to death and it may lead to severe pneumonia. It is caused by COVID-19 and there is still no treatment and no vaccination available for this infection. We would be going to discuss management of coronavirus infection in pregnancy. And at the end of the session, we would be able to define coronavirus and its modes of transmission, its effect on mother as well as on fetus, and what is the management of patients who presents with suspected or confirmed COVID-19 with mild symptoms and with confirmed COVID-19 with severe symptoms. And moreover, we would be able to manage the neonate. So this is a case scenario. Anyone would like to read it out for me? Yes, you please. A patient, 32 years old, Gravida 3 para 2, known case of diabetes mellitus for last 8 years, presented at 30 weeks gestation with history of cough, fever and now severe shortness of breath. Her temperature is 39 degrees centigrade and oxygen saturation is 84%. What is the most likely diagnosis? So what is the most likely diagnosis? Coronavirus. Coronavirus. It means the people already know a lot about coronavirus. So what is coronavirus? It is nothing new. It is just a new strain of an old virus. Coronavirus is known since many years and it is known to cause illnesses ranging from common cold. There are different strains of coronavirus which cause this MERS as well as SARS. But now this new novel coronavirus is a strain that is causing COVID-19 infection. We all know that it has now spread all over the world. The most affected country was China. Now Italy has even crossed the number of deaths, and even in Pakistan there were 454 cases and number of deaths reported in Pakistan has crossed 2. I think last night I was listening to the news and it has now 3. So what is the transmission? Everyone knows that it is transmitted from respiratory mode and from mild and fecal methods. But as we are discussing here the modes of transmission, we are talking about management of pregnancy. So there is no evidence of vertical transmission. जैसे वायरल इन्फेक्शंस में हम कहते हैं कि मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सम इन्फेक्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर एंड सम इन थर्ड ट्राइमेस्टर, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन की कोई एविडेंस नहीं है एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू जेनिटल फ्लूइड्स. व्हाट डज इट मीन कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की कोर्स, सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ ट्रांसमिशन विद अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और विद a normal delivery. So this is a little video. So you see, this is the mode of transmission that a doctor checked a patient and he carried the virus on his hands, and now wherever he is touching, he is shaking hand or he is touching a door, the virus is transmitted to the same place. Now if we reverse and we see that if he had used soap to wash his hands before touching anything else, so he would have prevented the spread of infection. So this is how the virus is transmitted. What are the effects on mother if she catches this virus? If mostly there are only mild to moderate flu-like symptoms, there can be severe cough and shortness of breath. Then she can develop
severe pneumonia, and that may lead to mild hypoxia, and as we already discussed, that oxygen saturation drops. And the most important thing is most of the patients may remain asymptomatic. There are no symptoms at all, but they are carriers of the infection and they keep on transmitting the infection. What is the effect on fetus? As far as it is just a new virus and we haven't gained much information about it yet, but as far as the information we have gained through China and Italy, there are as such the preterm birth is one of the effects. Preterm birth may be iatrogenic because we have to deliver the baby if the mother is very symptomatic and we have to resuscitate the patient. And there is also evidence of pre-labor, premature rupture of membranes that may also lead to preterm birth. There are chances of fetal compromise, as it is seen that while normal delivery there are chances of fetal compromise, CTG abnormalities. And there is fetal growth restriction. In 44% of patients that were infected with coronavirus, 44% had evidence of IUGR. And still there is no evidence of risk of miscarriage, pregnancy loss, intrauterine fetal infection or any other congenital anomalies as we see in other viral infections. And what are the effects, what is advice for pregnant women? General advice for any woman who develops such symptoms or who is confirmed with COVID-19, like if she has contacted with a person who is having or she is having symptoms of COVID-19, we would advise her to self-isolate. Self-isolate. The only thing that she can do is to self-isolate. So what is self-isolation? Anybody could read it out from me? You please. Do not go to school, work or public areas, do not use public transport, ventilate the rooms, use their own towels, crockery and utensils separate from other members of family. So what is self isolation? कि सब कुछ आपने बिल्कुल अपने एक रूम में बंद हो जाना है, वहाँ से ना आपके बर्तन दूसरे लोग टच करें, ना आपका वो टॉवल्स और क्रॉकरी भी कोई यूज़ ना करें, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रूम को भी वेंटिलेट करते रहना है विद सनशाइन एंड डोंट ओपन द डोर्स बट ओपन द विंडोज, कि कम से कम वहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहे और सनशाइन आती रहे. And if we have to isolate a patient in hospital, what should be the criteria? There is an anti-chamber for donning and doffing personal protective equipments. Personal protective equipments क्या है? वो जो हमारी पूरी किट होती है, मास्क होता है, Goggles, तो हाँ goggles, ये सारा जो है इसको डोनिंग कहते हैं पहनना और डॉफिंग उतारना. तो इसको करने के लिए एक एंटी चैम्बर होना चाहिए. व्हाट इज एंटी चैम्बर? लाइक इफ दिस इज द रूम, आइसोलेशन रूम, तो ये जो बीच वाली कॉरिडोर है, दिस इज एन एंटी चैम्बर. एक बीच में जैसे ड्रेसिंग रूम होता है एक अलग से साइड पे, उस तरीके से एक एंटी चैम्बर होना चाहिए. बाथरूम फैसिलिटी सेपरेट होनी चाहिए. नेगेटिव प्रेशर ऑफ दैट रूम इज एडवाइज्ड, कि उस रूम का प्रेशर नेगेटिव हो कि सराउंडिंग से तो उसके अंदर एयर आए लेकिन वहाँ से एयर बाहर ना जाए. एंड ओनली एसेंशियल आइटम्स एंड एसेंशियल स्टाफ इज रिकमेंडेड, कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्कैन मशीन इस किस्म की, ECG CTG में इस किस्म का कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ना पड़ा हो, सिर्फ जो चीज़ें चाहिए सिर्फ वो वहाँ पे मौजूद हो. Okay, now we will discuss what is the advice for patients who are suspected or confirmed. अब इस पूरे लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर कोई सस्पेक्टेड भी है तो उसको भी आपने उसी तरीके से ट्रीट करना है एज इफ शी इज हैविंग COVID-19, बिकॉज इसके रिजल्ट्स आने में देर लगती है. एंटिल दैट शी वुड बी स्प्रेडिंग दिस इन्फेक्शन अलॉट. तो अगर कोई सस्पेक्टेड है या कन्फर्म्ड है तो उन दोनों को आपने किस तरह डील करना है इफ शी इज हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, माइल्ड और नो सिम्टम्स, सॉरी नॉट मॉडरेट, माइल्ड और नो सिम्टम्स. सो रूटीन एंटीनेटल विजिट्स को हम कैसे करेंगे? They should be delayed. दे शुड बी डिलेड, नहीं करने. रूटीन जो है उसको आपने नहीं करना, ठीक है? सीनियर डिसीजन, अगर कोई पेशेंट कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे एंटीनेटल विजिट चाहिए, तो उसमें सीनियर डिसीजन होगा, पेशेंट के कहने पे नहीं. सीनियर विल डिसाइड कि क्या उसको आना चाहिए एंटीनेटल विजिट के लिए या नहीं, ठीक है? इसी तरह एसेंशियल अपॉइंटमेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसी है जिसको लाजमी देखना है तो उसको बाय द एंड ऑफ OPD, बाय द एंड ऑफ जो भी आपका प्रोसीजर है, जो भी आपका आउटडोर है या क्लिनिक है, उसके एंड पे आप उसको बुलाएंगे. अच्छा, अब हम उसकी बात करते हैं. जैसे हम लोग आउटडोर में बैठे होते हैं और पेशेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है? हमें तो कोई पूछ के नहीं आता ना कि मैं आऊँ कि ना आऊँ. हमारे तो आउटडोर में सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं. तो आउटडोर पेशेंट में क्या होना चाहिए OPD में, कि एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि जब पेशेंट एंटर हो तो उसी टाइम उसका, जैसे आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा थर्मोगन्स हैं वो, तो उसको इनिशियली स्टार्ट में ही उसको पिकअप कर लिया जाए कि कौन से पेशेंट सिम्टोमेटिक हैं, हु कुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग COVID-19.
ठीक है। अगर उनको एडमिट करना पड़ता है तो उनको तब तक हम एज अ कोविड-19 पेशेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे जब तक कि उनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है, इवन इफ दे आर ओनली हैविंग अ माइल्ड सिम्टम्स। अच्छा, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आई है विद लीकिंग विद पेन्स और आपने उसको फ़ौरन करना है, ऑपरेट करना है, डिलीवर करना है, व्हाट्सएवर, तो उसमें क्या करना है कि उनके पेशेंट को भी और अटेंडेंट्स को भी पहले बता दें कि इसमें इतना डिले ज़रूर होगा कि उसको हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहनानी है लाजमी। इसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना, PPE करके ही आपने पूरा जो है उसके बाद ही उसका डिलीवरी करनी है। किसी भी इमरजेंसी में इट इज़ मैंडेटरी कि आप पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खुद भी और पेशेंट को भी पुट ऑन कराएं, ठीक है। एंड डू नॉट डिले ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट वाइल टेस्टिंग फॉर कोविड-19, कि कोविड-19 के रिजल्ट का वेट नहीं करना, सिर्फ हमने इस चीज़ का वेट करना है कि हम प्रोटेक्शन सारी कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये वो केस है कि पेशेंट ने सेल्फ आइसोलेट किया है अपने आप को, लेकिन शी नीड्स हॉस्पिटल अटेंडेंस, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि पेशेंट से कहेंगे अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर आए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं आएगी पेशेंट। आने से पहले जब वो हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में हो, बिफोर एंटरिंग द हॉस्पिटल शी विल कॉल, एंटर होने से पहले जो है उसने अपनी इक्विपमेंट जो है वो स्टाफ सारा जो है उसकी एंटर होने से पहले पूरे स्टाफ ने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किया हुआ, और जैसे ही पेशेंट आए एंट्रेंस पर ही उसको आपने फेस मास्क भी पहना देना है, ठीक है, और फिर उसको एस्कॉर्ट करके जो स्टाफ है जिसने पर्सनल इक्विपमेंट किया हुआ है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो उसको एस्कॉर्ट करके सीधा आइसोलेशन रूम में चला जाए, ठीक है। सो व्हाट इज इंट्रापार्टम केयर? वंस द पेशेंट इज इन लेबर, सो हम क्या करेंगे, उसको आइसोलेशन रूम में ही उसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फीटल कॉम्प्रोमाइज के बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए इसकी कॉन्टिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग CTG उसकी कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लेबर चलती रहेगी। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को हम इन्वॉल्व करेंगे। कौन कौन से लोग होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में? ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, फिजिशियन होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने और क्या मॉनिटर करना है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, बिकॉज ड्यूरिंग लेबर एज द पेशेंट इज पुशिंग हर ऑक्सीजन सैचुरेशन में ड्रॉप, हर कंडीशन में वर्स एंड शी मे नीड टू बी रिससिटेटेड, तो इसलिए इसकी ओवरली ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने मॉनिटर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोड ऑफ बर्थ इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोविड-19 इन्फेक्शन। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ पेशेंट ने जाना है, तो अगर उसको कोविड-19 है तो हम इस बात पे उसका डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। मोड ऑफ डिलीवरी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोविड-19। ओके, सो इंट्रापार्टम केयर। अब अगर पेशेंट को पेन फ्री रहना है तो उसके लिए हम कौन सा एनेस्थेटिक सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसके लिए? कौन सा एनेस्थीसिया? एपिड्यूरल। व्हाई नॉट एंटोनॉक्स? रेस्पिरेटरी एरोसोलाइजेशन को वो बढ़ाएगी, ठीक है ना। एंटोनॉक्स में जब पेशेंट वो करेगी, ब्रीथ करेगी, तो जाहिर है उसका वो जोर जोर से ब्रीथ करेगी, बिकॉज वी आस्क द पेशेंट टू टेक लॉन्ग ब्रेथ्स इन एंटोनॉक्स मास्क, तो उसकी वजह से एरोसोलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्टिल इफ पेशेंट इंसिस्ट कि मैंने एंटोनॉक्स ही लेनी है, तो जो हम उसका फेस मास्क यूज़ करेंगे, इसके अंदर जो फिल्टर होगा उसका पोर साइज शुड बी लेस देन 0.05 माइक्रोमीटर, ठीक है। वैसे एपिड्यूरल सबसे सेफ एनेस्थीसिया है। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट की ड्यूरिंग, इसमें ये क्या फ़ायदा है कि एक तो पेशेंट पेन फ्री रहेगी, और अगर हमें फौरी तौर पे सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है तो उसमें भी हमें एक्स्ट्रा एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कॉर्ड क्लैंपिंग को रूटीन में जैसे हम डिले करते हैं उसी तरीके से डिले करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि फौरी बेबी की, बिकॉज देयर इज़ नो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है। एनेस्थीसिया भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, व्हाई नॉट जनरल एनेस्थीसिया? Why not general anesthesia? जनरल एनेस्थीसिया में डॉक्टर और पेशेंट का बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। शुरू से लेके उसकी जब वो ट्यूब डालते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑस्कल्टेट करते हैं, उसमें सिक्रीशन ज़्यादा, जब ट्यूब डालते हैं तो डेफिनेटली सिक्रीशन भी उनके हाथ में करना, सक्शन, हाँ, फिर उसके बाद सक्शनिंग होती है। तो अगर जनरल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक इन प्लेसेंटा प्रीविया और एनीथिंग लाइक दैट, जिसमें पेशेंट बिल्कुल भी एपिड्यूरल या स्पाइनल की तरफ नहीं जा सकती, तो फिर हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है। एक तो सब ने PPE पहना हुआ होगा तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टी होगी, तो उसमें हम चेकलिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब प्री ऑक्सीजनेशन के लिए जो मास्क रखते हैं उसके अंदर टाइट सील मास्क होना चाहिए कि वहाँ से एरोसोलाइजेशन ना हो, उसकी बजाय हम वीडियो लैरिंजोस्कोपी यूज़ करेंगे, ठीक है, दूर रहेंगे पेशेंट से। इसी तरह अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो रही है तो हमारे पास प्लान B और प्लान C होना चाहिए। आपको पता है अक्सर बूजी यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ, तो वो यूज़ करें या फिर सुप्राग्लॉटिक एयरवे यूज़ करें।
ठीक है। इसके अलावा जैसे ही वो डाल देते हैं ETT, उसके फ़ौरन बाद ग्लव्स उतार के नए ग्लव्स पहने, चेंज करें, ठीक है। उसके बाद जो वो करते हैं स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं, उसकी बजाय और मोड्स यूज़ करें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, या फिर दोनों तरफ इक्वल रेजिंग हो रही है कि नहीं चेस्ट की, उससे करें, ऑस्कल्टेट नहीं करना, मिनिमम कॉन्टैक्ट रखना है पेशेंट के साथ, ठीक है। तो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की ये रिकमेंडेशन है। अब अगर एक पेशेंट जिसका कंफर्म कोविड-19 है और उसके मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स हैं, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे? एंटीनेटल केयर में जैसे ही पेशेंट ऐसी सीवियर कंडीशन में आएगी, ज़ाहिर है उसको फ़ौरन एडमिट कर लेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी, इसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो स्पेशलिस्ट है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज पेशेंट इज़ इन सीवियर कंडीशन, ठीक है। बाकी वही सारे लोग हैं, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है। अच्छा, अब हमने ये डिसाइड करना है कि पेशेंट को डिलीवर हमने कहाँ पे करना है, उसकी अप्रोप्रिएट जो लोकेशन है जहाँ पे उसको डिलीवर करना है वो हमने डिसाइड करनी है विद द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, कि क्या पेशेंट को ICU में डिलीवर करना है, क्या आइसोलेशन रूम में डिलीवर करना है, कहाँ पर, या लेबर रूम में डिलीवर करना है। इसी तरह इसके अंदर जो आपको पता है डायग्नोसिस में एक तो हम इसका करते हैं PCR करते हैं बॉडी फ्लूइड्स का, ठीक है ना, सिक्रीशन, और दूसरा CT या चेस्ट एक्सरे होता है जो डायग्नोस्टिक है, तो वो हम लाजमी करवाएंगे शील्ड के साथ या व्हाट्सएवर, लेकिन वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वो लाजमी करवाएंगे टू मेक फर्दर डायग्नोसिस और टू डिसाइड इन विच कंडीशन पेशेंट इज, कितना उसका कॉम्प्रोमाइज है। क्या इसमें हमें डिलीवरी कर देनी चाहिए जब ये एक्टिव सीवियर में आए? हाँ, अगर सीवियर, अभी आगे मैं बताऊंगी कि इसको अगर, तो रिससिटेशन आपकी पूरी जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है वो पूरी मिलकर डिसाइड करेगी कि क्या डिलीवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्या इसकी पहले, मतलब हाँ, बिकॉज इन एनी केस मदर लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और स्टेरॉइड्स जो हैं वो भी जहाँ पे भी इंडिकेटेड हैं आप देख सकते हैं, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सो इंट्रापार्टम केयर कंटिन्यूड, साथ ही हम जो नियोनेटल टीम है उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे, बिकॉज इफ वी हैव टू रिससिटेट द पेशेंट वी हैव टू डिलीवर द बेबी एंड बेबी वुड बी हैंडेड ओवर टू नियोनेटल टीम। इसके बाद हम फ्लूइड इनटेक और आउटपुट की लाजमी मॉनिटरिंग करेंगे, बिकॉज इसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यू नो कोई भी चेस्ट वाली या कार्डिक पेशेंट हो तो उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह सेम लाइन पे हम इसको भी ट्रीट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को न्यूट्रल फ्लूइड बैलेंस में रखा जाए। सो वंस द बेबी इज डिलीवर्ड, व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बेबी? इसके अंदर ये है कि चाइनीज़ ने ये कहा था कि उन्होंने ये एविडेंस निकाली थी कि जी अगर मदर और ब्रेस्ट फीड कराएगी तो उससे बेबी के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि ब्रेस्ट मिल्क जो है दैट इज़ नॉट इन्फेक्टेड विद कोविड-19, ठीक है। तो फिर वो यही समझा गया कि क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट में मदर रखती है बेबी को, इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है कि दे सकते हैं हम, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एडवाइस, लेकिन उसके अंदर मदर को हमने स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है। वो ये कि एक तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है, फेस मास्क यूज़ करेगी, इसके अलावा जो है वो जब कफिंग या स्नीजिंग के टाइम पे वो बेबी को अपने से दूर रखेगी, ठीक है। और इसी तरह जो अगर वो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके बेबी को दे रहे हैं तो जो पम्प क्लीनिंग है दैट शुड बी परफेक्ट, और इसी तरह जो एक्सप्रेस मिल्क है वो कोई और जो है वेल है जो हेल्दी है वो जाके बेबी को पिलाएगा अगर एक्सप्रेस मिल्क है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग में आपको बता दिया कि फेस मास्क हो और हैंड वॉशिंग और प्रॉपर हैंड वॉशिंग। So, what do you think? कि कोरोना वायरस से कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल? कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। इन्फेक्शन होने को रोका जा सकता है, अपने आप को इन्वॉल्व होने को रोका जा सकता रोका जा सकता है, डेथ को रोका जा सकता है। अगर वो वहाँ तक पहुँच गई तो फिर कैसे होगा? वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। सो लेट्स सी, दिस इज अ स्मॉल वीडियो। अगर आप सारी प्रिकॉशंस कर लें तो यू माइट बी सेव फ्रॉम कोरोना वायरस, बट देयर इज नो गारंटी दैट यू शुड बी लेफ्ट अलाइव, ओके। वो किसी और वजह से चला गया। So this is all about coronavirus. Stay calm and fight corona. Stay safe. Thank you. There are feedback forms that I will be delivering to you. Please fill these forms. And any questions? इसमें ये कि बहुत सारे भी रिसेंट जो आ रहे थे WHO की भी कुछ थी और दूसरी की, और मैंने कुछ में ऐसा देखा कि वो कह रहे हैं कि बच्चों में ये वायरस शायद नहीं जाता,
बच्चों में उनकी उसकी वो ही नहीं है। बिल्कुल नियोनेट्स में या मतलब 0 to 9 उन्होंने कहा कि 0 to 10 years में जो 10 है ना, years तक वो कहते हैं नहीं होता अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं और हुई। कोई इन्फेक्शन जो एविडेंस है ना वो ये है कि अभी तक डेथ्स जो हुई है वो मोर देन 70 इयर्स लोगों ओल्ड में एज को ज्यादा ज्यादा हुई है। है, जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं उनको ज्यादा रिस्क है। बच्चों में भी तो अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो ज्यादा 0 to 10 years में हाँ, अभी तक हाँ, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। मे बी इन्फेक्टेड अच्छा उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स जरूर करें, आप डिस्टेंसिंग करें। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या हम कहना चाहेंगे अगर देखिए प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, टेक प्लेंटी ऑफ फ्रेश जूसेस, विटामिन सी, ठीक है ना। तो अपनी डाइट अच्छी रखें और Anemia जो ना वो हो। पेशेंट हाँ एनीमिया को अवॉइड करें। और वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी लाइक वो डायबिटिक दे शुड कीप कंट्रोल ऑन देयर डायबिटीज, ठीक है ना। इसी तरह अपने आप को जो ऑलरेडी जिनकी कंडीशंस चल रही हैं उसको स्टेबलाइज रखें तो होपफुली। और फिर जाहिर है वो सारी ट्रांसमिशन की जो हमने बात की है कि वाइड कॉन्टैक्ट, कॉन्टिन्यूस हैंड वॉशिंग, वो सारी चीज़ें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।